کراچی میں 4 روزہ عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آغاز مقامی طور پر تیار ہونے والی دفاعی مصنوعات نمائش کے لیے پیش دنیا بھر سے 550 سے زائد سٹالز نمائش کا حصہ نمائش کا باضابطہ افتتاح وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کیا پاکستان کی دفاعی صنعت فروغ پا رہی ہے دفاعی ضروریات کی برآمدات سے معیشت مضبوط ہوگی آئیڈیاز نمائش پاکستان کی دفاعی پیداوار کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا خطاب دفاعی نمائش اہمیت کی حامل ہے نمائش کے انعقاد سے ملک کی دفاعی صنعت کو فروغ ملے گا دنیا بھر سے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دفاعی نمائش کے انعقاد پر مسلح افواج کا بھی شکر گزار ہوں ڈی جی ڈیپو میجر جنرل اسد نواز جنجوعہ کا خطاب حکومت کی بہترین معاشی پالیسیوں کے ثمرات پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ ساز دن 100 انڈیکس میں 703 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 95,698 کی بلند ترین سطح پر پہنچا ایس آئی ایف سی کی کاوشوں سے پاکستان کی ترسیلات زر میں 24% کا نمایاں اضافہ اکتوبر میں $3 ارب ریکارڈ جولائی تا اکتوبر مجموعی ترسیلات زر 35% بڑھ کر $11.8 ارب تک پہنچ گئی ترسیلات میں تسلسل کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کنٹرول کرنے سمیت زر مبادلہ ذخائر میں اضافے اور معاشی استحکام کا باعث بنا نظام تعلیم کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا بڑا چیلنج دنیا کی معیشتوں میں ممتاز مقام حاصل کرنے کے لیے تحقیق پر کام کرنا ہوگا آنے والی نسلوں میں ذہنی اور فکری صلاحیت پیدا کرنی ہوگی نصاب میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت بھی ضروری ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب نوجوان نسل بے پناہ صلاحیتوں کی حامل ہے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے ذریعے نوجوانوں میں صلاحیتوں کو اجاگر کر رہے ہیں معاشی میدان میں اچھی خبریں آ رہی ہیں ایک سیاسی جماعت صرف تخریب کی بات کرتی ہے ملک کو غیر مستحکم کرنے کے درپے عناصر کے عزائم کو قوم ناکام بنائے گی چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی نیوز کانفرنس وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیر داخلہ نے جے یو آئی کے سربراہ کی خیریت دریافت کی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں تاریخ ساز کردار پر اظہار تشکر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری برائے امور خارجہ دولت مشترکہ اور ترقی ہمیش فالکنر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات دولت مشترکہ کے ممبر ممالک میں روابط اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال پاکستان برطانیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے دولت مشترکہ کے رکن ممالک کے درمیان پارلیمانی روابط بڑھانے کی ضرورت ہے اسپیکر قومی اسمبلی لاہور سمیت پنجاب بھر میں اینٹی سموک گرینڈ آپریشن جاری ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر درجنوں بھٹے صنعتی یونٹ مسمار فیکٹریاں اور کارخانے سیل لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر شاہراہوں پر گاڑیوں کی پڑتال عوام کے جان کا تحفظ اولین ترجیح ہے مشترکہ کاوشوں سے سموک سے نجات ملے گی سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بشرا بی بی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پر برس پڑی انارکی پھیلاؤ ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہو بشرا بی بی کی وزیر اعلیٰ کے پی کے کو کھلی دھمکی احتجاج میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنے والوں کو سیاسی رشوت کی پیشکش جو احتجاج میں زیادہ لوگوں کو لائے گا پارٹی ٹکٹ اور عہدہ صرف اسی کو ملے گا بشرا بی بی کی نئی شرط پی ٹی آئی ارکان صوبائی وزراء اور اہم رہنما ناراض 7 رہنما پارٹی اجلاسوں سے مسلسل غیر حاضر احتجاج کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاسوں سے بھی اہم رہنماؤں کی عدم شرکت
ग्रुप 20 ममालिक का गजा और लबनान में जामे जंग बंदी का मुतालबा। गजा की पट्टी में तवक्कुन सूरत हाल और लबनान में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद बढ़ाने समेत इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के दो रियासती हल पर जोर। दुनिया में जारी जंगें रुकवाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए फंडिंग में खातिर खा इजाफे की अशद ज़रूरत है। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनीरो में G20 सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया। गजा पर वहशियाना इजरायली बमबारी, 76 फलस्तीनी शहीद, 158 जख्मी। झड़पों में 2 यहूदी फौजी हलाक। इजरायली लड़ाका तैयारों के लेबनान के दारकूमत बैरूत पर भी हमले। 8 तिब्बी कारकुनों समेत 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह के इजरायली दारकूमत तल अबीब पर रॉकेट हमले, हलाकतों की इतलात। सऊदी अरब की स्कूल्स और अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के कारकुनों पर सहूनी बमबारी की शदीद मजम्मत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की तलबा को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी। तलबा तहकीक और इख्तरा पर तवज्जो दें। नौजवानों ने जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। माजी में तलबा यूनियंस ने मुल्क को बेहतरीन सियासतदान दिए। तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार भरत का पिम्स अस्पताल का दौरा। ज़ेरे तामीर पार्किंग और 200 बेड्स पर मुश्तमिल न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का जायजा। डॉक्टर मुख्तार भरत की मुकर्ररा डेडलाइन तक न्यू इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर को मुकम्मल करने की हिदायत। अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी को बिला तात्तुल यकीनी बनाया जाए। अस्पतालों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए इकदाम किए जाएं। डॉक्टर मुख्तार भरत। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान क्रिकेट सीरीज। मेज़बान जिम्बाब्वे ने वनडे और T20 के लिए अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। वनडे स्क्वाड की क़यादत आरन ग्रेग और T20 की क़यादत सिकंदर रजा करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 की सीरीज खेली जाएगी। आगाज़ 24 नवंबर को पहले वनडे से बुलावायो से होगा। इटली ने ब्लीजन किंग कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में इतालवी टीम ने एगा श्वेटिक की टीम पोलैंड को 2-1 से शिकस्त दी। दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला स्लोवाकिया और बर्तानिया के दरमियान सेमीफाइनल में होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं पाकिस्तान दफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर गामजन है। हम आलमी सतह पर क़याम अमन में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कराची में 12वीं दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा का कहना था कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम समेत तिजारत के फ़रोग के लिए बातचीत और बाहिमी ताउन पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि दिफाई नुमाइश में 52 से ज़ायद ममालिक की शिरकत आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करती है। DG डिपो मेजर जनरल असद नवाज जंजुआ ने खिताब करते हुए कहा कि दौरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ा रहे हैं। आइडियाज़ 2024 का एडिशन पहले के तमाम एडिशन से कामयाब रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मईशत की तरक्की के लिए इकदाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7%, जबकि पॉलिसी रेट भी 22% से कम होकर 15% पर आ गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी
से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की बरामदात में इजाफे और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़रूरी शोबे में इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत के खिराज तहसीन पेश किया। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत की तरक्की तभी मुमकिन है जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। इजलास में वज़ारत ख़जाना ने IMF के वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। इजलास को मईशत के इशारियों और महंगाई की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम रखने में SIFC का अहम किरदार है। SIFC की काविशों से पाकिस्तान के तरसीलात ज़र में 24% का नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की सालाना तरसीलात ज़र अक्टूबर 2024 में 24% इजाफे के साथ $3 अरब रहीं। अक्टूबर में सऊदी अरब से $76 लाख, 6 करोड़ 21 लाख, 4 करोड़ 29 लाख डॉलर से जायद की तरसीलात मौसूल हुई। तरसीलात ज़र में इजाफे के बायस पाकिस्तान के ज़र मुबादला, ज़खायर और माशी इस्तेहकाम में बेहतरी आई है। तरसीलात ज़र में इजाफे का सबब डाटा की डिजिटाइजेशन और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा है। SIFC के ताउन से तरसीलात ज़र में इजाफे से पाकिस्तान के तरक्याती मनसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फ़रोग़ मिला है। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़रिए तमाम तालीमी निसाब में इस्लाहात के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तालीमी निसाब को जदीद तकाज़ों पर उस्तवार करने के लिए मॉडल असेसमेंट फ्रेमवर्क का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि निज़ाम तालीम को अस्र हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग करना बड़ा चैलेंज है। निसाब में बेहतरी लाने के साथ साथ असातिज़ा की तरबियत भी ज़रूरी है। तालीमी निज़ाम में जिद्दत लाने से टेक्नो मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। हमारा 5 साला मंसूबा जिसे हमने मुरतब किया है 5 E's के ऊपर, इसमें हमने तालीम को एक अहम किरदार दिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि तालीम के ज़रिए ही हम वो टेक्नो इकॉनमी क्रिएट कर सकते हैं जो आने वाले वक्त की ज़रूरत है। और इसके लिए हम सूबों के साथ मिलकर निसाब पर भी काम करेंगे ताकि हमारे निज़ाम तालीम को वो मजबूत बुनियाद मिल सके जिस पर हम 21वीं सदी के अंदर एक नॉलेज इकॉनमी की इमारत खड़ी कर सकें। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं 20 से 23 नवंबर यूनिवर्सिटी ओलंपिया होने जा रहा है। मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों के 3000 से ज़ायद नौजवान शिरकत करेंगे। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करती है। राना मशहूद का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नौजवानों की खेलों की सरगर्मियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि यूनिवर्सिटी ओलंपिया एक मेगा इवेंट होने जा रहा है और इन बच्चों को इस्लामाबाद में वेलकम करना है। उन्होंने कहा कि एक जमात हमेशा मनफी बात करती है, तखरीब कारी करती है, जिनके क्रेडिट पर कोई काम नहीं। COP29 में पाकिस्तान के पवेलियन की बात करते हुए राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तानी पवेलियन मरकज़े निगाह बना हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वज़ीर दाखिला ने 26वीं यानी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार अदा करने पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए उमूर खारजा हमेश फॉल्कनर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, दौलत मुश्तरका के मेंबर ममालिक में राबतों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का एक फाल और सरगर्म रुकन है। दौलत मुश्तरका का एक जिम्मेदार रुकन होने की हैसियत से पाकिस्तान ने हमेशा दौलत मुश्तरका के फैसलों और पॉलिसीज़ की पासदारी की। पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉल्कनर ने पाकिस्तान में जमहूरी इदारों को मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया।
पंजाब हुकूमत के तारीख साज और अहम कदम के हवाले से इस वक्त आपको अपडेट करेंगे कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुल्की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी है। हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के जायजा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने डायलिसिस के मरीजों के इलाज के लिए फंड 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की हिदायत कर दी है। पंजाब में अमराज गुर्दा में मुब्तला हर मरीज के लिए 8.5 लाख रुपए डायलिसिस और 1.5 लाख टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तस होंगे। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि डायलिसिस के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर भी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला को बताया गया कि दीगर सूबों के मरीज भी पंजाब में मुफ्त डायलिसिस की सहूलत ले रहे हैं और पंजाब से मुफ्त अद्वियात सिंध, बलूचिस्तान और दूसरे सूबों में जा रही हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 95,926 पर पहुंच गया है। सरमायाकारों का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसीज के सबब स्टॉक मार्केट में मुसलसल इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल जमाली, उनसे मजीद डिटेल जानेंगे। जी सुहेल, माशी सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो तफसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है, महंगाई का जो रेशो है उसमें भी अब खातिर खा हद तक कमी आ चुकी है। सरमायाकार कितने मुतमईन दिखाई देते हैं अब? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज़ाना तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है और आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सुबह से ही तेज़ी का रुझान था और कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन 95,874 पॉइंट्स तक अब से कुछ देर पहले मार्केट पहुंची थी। माशी माहिरीन, स्टॉक माहिरीन का कहना है कि इस हवाले से जो सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है उसकी बुनियादी वजह हुकूमती पॉलिसियाँ हैं। माशी इस्लाहात, टैक्स की इस्लाहात, SIFC के इक़दामात जिसमें टेलीकॉम, ज़राअत, IT की फील्ड, कानकनी और मादनियात समेत दूसरे शोबों में बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क सरमायाकारों की सरमायाकारी शामिल है। रवां साल अक्टूबर में तरसीलात ज़र में 24% का इजाफा हुआ और इस तरह पूरे साल में 35% का इजाफा हो चुका है। इस सहमाही में IT की एक्सपोर्ट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रही और इसमें भी 34% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की IT की बरामदात मुसलसल बढ़ रही हैं। SIFC के खुसूसी इक़दामात के तहत मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। कानकनी, मादनियात, टेलीकॉम, IT का सेक्टर और ज़राअत में बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, जिससे स्टॉक मार्केट पर भी मुस्बत असरात पड़ रहे हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में मुसलसल सियासी इस्तेहकाम और महंगाई की शरह जो 29.6% से 6.8% तक लाई गई है, इससे सरमायाकारों के एतमाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने पंजाब में एंटी स्मोक ऑपरेशन पूरी शिद्दत से जारी रखा हुआ है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पंजाब भर में आलूदगी फैलाने वाले दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट्स मिसमार कर दिए गए हैं, जबकि दर्जनों फैक्ट्रियाँ और कारखाने सील कर दिए गए हैं। खानेवाल, मुल्तान, रहीम यार खान, विहाड़ी, सरगोदा, झंग, लिया, बहावल नगर और पाक पतन में जिग जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों को गिराया गया। सबसे ज़्यादा 14 भट्टे मुल्तान और 8 लिया में गिराए गए। सीनियर सूबाई वजीर ने बताया कि 15 नवंबर को लाहौर और गुजरावाला में 20 सनती यूनिट्स आलूदगी फैलाने पर मिसमार किए गए और 51 को सील किया गया। लाहौर के एंट्री पॉइंट्स और मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की पड़ताल का अमल जारी है और सेफ सिटी कैमरों से भी शहर भर की निगरानी की जा रही है। खिलाफ वर्जी की मुर्तकब गाड़ियों को जुर्माने किए जा रहे हैं और ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने एंटी स्मोक ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम महकमों के कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे मुदस्सिर खान से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? लाहौर में फ़िज़ा को आलूदा और शहरियों को शदीद परेशानी से दोचार करने वाली स्मोक की शिद्दत में नुमायां कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक
स्मोक की जो ये लहर है इसमें आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद जो है वो कमी आने का इम्कान है। मशरक़ी हवाओं का रुख तब्दील होने और शुमाली इलाका जात से आने वाली तेज़ और ठंडी हवाओं के बाइस स्मोक की शिद्दत में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद SOPs में भी कुछ जो है वो नरमी बरती गई है। रेस्टोरेंट्स की जो औकाते कार हैं उनको तब्दील करके बढ़ा दिया गया है, जबकि लाहौर और मुल्तान के अलावा तमाम पंजाब के जो स्कूल्स हैं उनको भी खोल दिया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक स्मोक का बाइस बनने वाले मुहर्रिकात के ख़िलाफ़ तेज़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हुकूमत पंजाब के मुताबिक स्मोक की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्तान में स्मोक की शिद्दत में खासी कमी आ गई है, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में नरमी करते हुए रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। पंजाब में बारिश, हवा की रफ्तार और समत में तब्दीली के बायस माहौलियाती निज़ाम में बेहतरी आई है। तहम गुज़श्ता एक हफ्ते में ज़िले इंतज़ामिया ने 100 से ज़ायद भट्टों को मुकम्मल मिसमार किया। फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट जलाने वाले के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करते हुए 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। PHA की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए पार्कों, ग्रीन बेल्ट्स और चौराहों पर छिड़काव का अमल जारी है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मोग और धुंध छाए रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। पंजाब के ज़्यादातर इलाके स्मोग और धुंध की लपेट में रहे। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लह -8 जबकि स्कर्दू में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पर बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से अहम खबर आपको देते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से लेबनान में जंग से मुतासर अफराद के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। कराची से 17 टन इमदादी सामान की 20वीं खेप रवाना कर दी गई। इमदादी सामान NDMA और अल-खिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना किया गया, जिसमें अद्वियात, तैयार गोश्त, खैमे, चावल, गर्म बिस्तर, गर्म कपड़े, खुश्क दूध और जनरेटर्स शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन और लेबनान के लिए इमदादी सामान की ये 20वीं खेप है। पाकिस्तान की जानिब से अब तक 1739 टन इमदादी सामान की खेप रवाना की जा चुकी है। इजरायली फ़ौज की जानिब से मज़लूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सहूनी फोर्सेस के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी के नतीजे में 76 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 158 ज़ख्मी हो गए। बैतुल्लाहिया में रिहायशी टावर पर इजरायली फ़िज़ाई हमले में 72 अफराद शहीद और 20 ज़ख्मी हो गए। मलबे तले बड़ी तादाद में लोग दबे हुए हैं, जबकि मशीनरी न होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। शोहदा और ज़ख्मियों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। शिमाली गजा में झड़पों में 2 इजरायली फ़ौजी भी हलाक हो गए। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 44,000 के करीब पहुँच गई। उधर इजरायली लड़ाका तैयारे लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत के जनूबी इलाकों पर बमबारी जारी रखे हुए हैं। बमबारी के नतीजे में 8 तिब्बी कारकुनों समेत 13 अफराद जाम बहक हो गए। हिजबुल्लाह ने इजरायली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर रॉकेट हमले किए, जिनमें हलाकतों की इतलात हैं। लेबनान में सहूनी फोर्सेस के हमलों में 3,500 अफराद जाम बहक जबकि 14,786 ज़ख्मी हो चुके हैं। सऊदी अरब ने स्कूल्स और अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के कारकुनों पर सहूनी बमबारी की शदीद मज़म्मत की है। यहाँ पर आपको खबर देंगे G20 समिट से मुतालिक। दुनिया की बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का इजलास ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में शुरू हो गया। इजलास में गुर्बत के खात्मे, मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर अहम आलमी उमूर पर गौर किया जाएगा। इजलास में अमेरिकन सदर जो बाइडन, चीन के सदर शी जिनपिंग, फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। मेज़बान ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने
افتتاحی خطاب میں خوراک کی عدم تحفظ اور اس گمبھیر مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھوک اور غربت قدرتی وسائل میں کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ سیاسی فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر برازیل کے ہم منصب لولا ڈی سلوا سے ملاقات کی ہے، جس میں مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال، دو طرفہ تعلقات، اسٹریٹجک شراکت داری سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق ترک صدر نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف برازیل کے موقف کو قابل تحسین قرار دیا۔ صدر اردوان نے کہا کہ ترکیہ نے اقوام متحدہ میں اسرائیل کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کی فروخت کو روکنے کے لیے کوششیں شروع کی ہیں۔ اقوام متحدہ غزہ سمیت دنیا بھر میں تنازعات کو روکنے میں ناکام ہے۔ یہاں پر بلیٹن میں ایک بار پھر سے شامل کرتے ہیں اہم قومی خبریں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے شہر میں 18 سے 24 نومبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ پابندی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کے تناظر میں لگائی گئی، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ شہر میں ہر طرح کے اجتماعات، مظاہروں، ریلیوں اور 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ پابندی کا نفاذ نمائش کے مقامی اور غیر ملکی شرکاء کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔ پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں، سرسبز کی نائٹروفاس اور کین، جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال سے۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں بھارتی فوج نے متعدد بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے نوجوانوں کو ضلع بارہمولہ اور پلوامہ کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا ہے۔ شہری حقوق کے کارکنوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے اور کشمیری نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے پر مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقدامات بھارتی حکومت کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5000 سے زائد کشمیری محض اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے نظر بند ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے مذاکرات کے ذریعے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ دیرینہ تنازع کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے بین الاقوامی مداخلت ناگزیر ہے۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر پر مذاکرات کی غرض سے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے حریت قیادت سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے اور مقبوضہ علاقے میں نافذ کالے قوانین کو منسوخ کرے۔ دوسری جانب مقبوضہ جموں کشمیر میں کانگریس کے سربراہ طارق حمید قرہ نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت منتخب حکومت کو اقتدار کی منتقلی میں تاخیر پر بھارتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ 1971 کی جنگ میں بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان میں بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام کیا۔ پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ بے گناہ اور نہتے پاکستانیوں پر دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی کی جانب سے کیے گئے مظالم اور قتل عام کا الزام پاکستان آرمی پر لگایا گیا۔ 1971 کے جنگ میں حصہ لینے والے پاک فوج کے کرنل ریٹائرڈ ظفر اقبال فاروق نے 1971 کے جنگ کی آپ بیتی سناتے ہوئے کہا کہ مشرقی پاکستان رائفلز ایسی فورس تھی جو 1500 لوگوں پر مشتمل تھی، جو کہ تمام سرحدی علاقوں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر پھیلی ہوئی تھی۔ East Pakistan Rifles was a force consisting of about 15,000 people spread all over the border posts and the district headquarters. And it had about 95% Bengalis, 4% Biharis, and 1% West Pakistanis. So overall, Biharis were not considered as a separate entity. So that's why they were also considered Bengali. The atrocities had been started by Bengalis on 1st of March.
On 2nd March, 3rd March, they had killed hundreds of people in Chittagong near Pahartali. So the atrocities were started from them. And when the bloodshed starts, then it doesn't have a ratio to be followed. So first of all, I just make a point over here. Sharmila Bose, she has written a book and she said that Pakistanis have not committed that much atrocities. All true Pakistanis, whether they were Bihari, whether they were Bengali, they were all butchered mercilessly. Even on the last day, when people say that did Pakistan go, East Pakistan go turned again against us so bad, then how are we existing? Now, latest what happened towards the end, when it was going to, we were closing up to come and the end of the war, they carried out a real massacre of the educated people. They made their graves, collective graves. And once we were not there, all of them were claimed as intellectuals, Bengali intellectuals. I wish the dead bodies, the spoiled ones, could tell whether they were poor Biharis or Bengalis or West Pakistanis. Biharis got the maximum damages. The reason was that in our records, we had only East Pakistani and West Pakistani. So Bihari was not having as a community, it was not shown till such time they were murdered mercilessly. And then we started counting that how many Biharis were there, and they're suffering even today. There are 2.5 lakh people were murdered. Bengali Pakistanis were murdered by the Mukti Bahini and the Indian forces. Now, a question comes, why this thing happened? Who did it? How these things are there? Most of the things are thrown on the Pakistan army. West Pakistanis, we today love Bengalis, and they also have a similar feeling for us. गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ्द ने लाहौर में मुलाकात की। तलबा से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा कि तलबा पर तहकीक और इख्तरा पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों में तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए, जिनका मकसद तलबा को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहां वो अपने मसाइल हल कर सकें। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि नौजवानों ने जराव घेराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बिलावल भुट्टो नौजवानों की उम्मीद है जो मुल्क को दरपेश मसाइल से निकाल सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का है कहना कि पाकिस्तान से गैर मशरूत वफादारी आइन का जुज़्व और हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। जिसने पाकिस्तान से वफा की उसे इज़्ज़त मिली और जिसने गद्दारी की वो रुस्वा हुआ। कोयटा के एक स्कूल में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने सूबे में रवायती तालीम के साथ जदीद तालीम के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमारी तमाम तर सलाहियतें और मुखलिसाना मेहनत पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि बलोचिस्तान का मुस्तक़बिल खूबसूरत और मेहनती हाथों में है। तालिब इल्म मुस्तक़बिल के लीडर बलोचिस्तान के सफ़ीर हैं। मीर सरफराज बुगटी ने स्कूल के लिए 10 लाख रुपये कैश एवॉर्ड जबकि टेबलो पेश करने वाले बच्चों के लिए 1 लाख रुपये नकद इनाम का ऐलान किया। डॉक्टर मुख्तार भरत ने कहा है कि हस्पतालों में क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेहतर बनाना हमारा अव्वलीन एजेंडा और मिशन है। वफाकी हस्पतालों की कारकर्दगी बढ़ाने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। हस्पतालों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम को बेहतरीन और मयारी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर मुख्तार भरत ने पिम्स हस्पताल की ज़ेर तामीर पार्किंग और 200 बेड्स पर मुश्तमिल न्यू एमरजेंसी का दौरा किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने हस्पताल की कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस के बारे में ब्रीफ किया। डॉक्टर मुख्तार भरत ने कहा कि आईडीप 200 बेड्स पर मुश्तमिल न्यू एमरजेंसी की तामीर को मुकर्ररा डेडलाइन मार्च 2025 तक मुकम्मल करें। काम की रफ्तार को टाइमलाइन के साथ खुद हर 10 दिन बाद ब्रीफिंग के साथ मॉनिटर भी करूंगा।
بعد ازاں ڈاکٹر مختار بھرت نے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم آفس کے دورے پر کہا کہ انتظامیہ ون پیشنٹ ون آئی ڈی کے نظام کو ہنگامی بنیادوں پر نافذ کرے۔ ہسپتالوں میں کوالٹی آف سروس کو بہتر بنانا ہمارا اولین ایجنڈا اور مشن ہے۔ وفاقی ہسپتالوں کی کارکردگی بڑھانے پر پختہ عزم کر رکھا ہے۔ ہسپتالوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایمرجنسی میں ادویات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائیں۔ جان بچانے والی ادویات کی فراہمی کو بلا تعطل یقینی بنایا جائے۔ شہدائے پاک فوج کو سلام۔ میجر محمد حسیب نے 14 نومبر کو بلوچستان میں دہشت گردوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر جام شہادت نوش کیا۔ شہادت سے چند دن پہلے میجر محمد حسیب نے کہا تھا کہ میں شہید ہو کر جنت میں جاؤں گا، شہادت میری تقدیر ہے۔ پاک فوج کے اس افسر نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ شہادت کتنا عظیم رتبہ ہے۔ ان کی شہادت ہمیں بتاتی ہے کہ وطن کی محبت میں جان دینا کسی عظیم خواب سے کم نہیں۔ میجر حسیب شہید ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی قربانی کی داستان ہر دل میں زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بتاؤ نا کیا کرے گا اگر شہید ہو گیا تو؟ جنت میں رہوں گا، ہمیں بھی لے کے جائے گا یار، میرے ساتھ والی قبر تمہاری۔ پیزا تو دے دے پھر تھوڑا۔ اچھا اچھا تو جنتی ہے بھائی۔ آرمڈ فورس انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری میں پاکستان کے پہلے آپریٹو ڈینٹسٹری اور اینڈوڈونٹکس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس لیفٹیننٹ جنرل ارشد ننیم، ہلال امتیاز ملٹری سرجن جنرل، ڈائریکٹر جنرل میڈیکل سروسز انٹر سروسز کی سرپرستی اور میجر جنرل ندیم احمد رانا ہلال امتیاز ملٹری کی سربراہی میں منعقد کی گئی۔ کانفرنس کا مقصد آپریٹو ڈینٹسٹری اور کے شعبے میں نئی تحقیق کو فروغ دینا تھا۔ کانفرنس میں عالمی سطح کے ماہرین، محققین اور پریکٹیشنرز نے شرکت کی۔ کانفرنس میں شریک افراد کو مستقبل میں پارٹنرشپ کا موقع ملے گا۔ پاکستان میں ڈینٹسٹری کی ترقی کے لیے کانفرنس سنگ میل ثابت ہوگی۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان قرض پروگرام کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ترجمان اقتصادی امور کے مطابق ایشیائی ترقیاتی بینک $500 ملین فراہم کرے گا۔ قرض پروگرام کی رقم موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ وفاقی وزیر راحت چیمہ کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ معاہدے پر پاکستان کی جانب سے سیکرٹری اقتصادی امور ڈاکٹر کاظم نیاز نے دستخط کیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے کنٹری ڈائریکٹر MFN نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ڈائریکٹر جنرل گلیارڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی شاہ رخ خان نے کہا ہے کہ سعودی سرمایہ کاروں نے سیاحتی مقام ٹھنڈیانی میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے، جس سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ ایبٹ آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گلیات میں پانی کے مسئلے کے حل کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر قومی پالیسی مرتب کی جائے گی تاکہ گلیات اور گلیات سے مری کو بلا تعطل پانی کی سپلائی جاری رکھی جا سکے۔ ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے اس سال گلیات اور ٹھنڈیانی کا رخ کیا۔ برف باری میں سنو ونٹر فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا۔ مفتی اعظم پاکستان پیر سید محمد جلال الدین شاہ مشہدی بانی درگاہ مقدسہ بھکی شریف کے 39ویں سالانہ عرس اور علامہ پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ مشہدی کے 15ویں سالانہ عرس کی تقریب بھکی شریف منڈی بہاؤدین میں ہوئی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مشائخ بھکی شریف سجادہ نشین مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی اور دارالعلوم کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صوفیہ کرام نے اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کی اور تبلیغ دین کے لیے عملی کردار ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ مقررین نے عصر حاضر میں نئی نسل کے کردار پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب میں علماء مشائخ سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بیت الخلاء کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد عوام میں حفظان صحت سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں ملتان سے فرحان مرزا کی یہ رپورٹ۔ عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے مطابق دنیا کی تقریباً نصف آبادی یعنی 4 ارب لوگوں کو اپنے ہی گھروں میں بیت الخلاء کی بہتر سہولت دستیاب نہیں۔ دونوں اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق 85 کروڑ افراد اب بھی رفع حاجت کھلی فضا میں کرنے پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال میں حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر ہر سال
4 लाख के करीब मजदूर दम तोड़ जाते हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 25% आबादी महफूज बैतुल खला और मुनासिब सैनिटेशन की सहूलियात से महरूम है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि और प्राइवेट इदारे भी जो है ना इसके ऊपर काम करें और डिफरेंट जगहों पे टॉयलेट्स बनाएं और इनका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये है कि इसका डिस्टेंस बाज़ों का बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए लोग जो है ना आम जगहों को भी, हमारी तरफ ये बड़ा कल्चर है कि वहाँ पे भी एज ए टॉयलेट के तौर पे वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक एक तो हाइजीन लेवल ख़राब होता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा बीमारियां भी इससे फैलने के चांसेस होते हैं। पंजाब और सिंध के देहात में आज भी 1 करोड़ के करीब खवातीन को रफ़ा हाजत के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे इनकी सेहत मुतासिर होती है और उनके जिस्म में बीमारियां पनपने लगती हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी है कि आलमी इदारे तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर ऐसी कोशिशों के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान।